चलो बच्चों, let's read this question. The statement that are not correct for periodic classification of elements are: A. The properties of elements are periodic function of their atomic masses. B. Non-metallic elements are less in number than metallic elements. C. For transition elements, the d orbitals are filled with electrons after 3p orbitals and before 4s orbitals. D. Halogens have highest ionization enthalpy in their respective periods. So, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होंगी. So key concept in this question is that the first periodic table was proposed by the Russian chemist, that is Mendeleev. So basically Russian chemist Mendeleev proposed periodic table. So in periodic table there is an arrangement of all the known elements. So हमारे periodic table में क्या है, arrangements है सारे known elements का. So now we look into first option, that is A. Properties of elements are periodic function of their atomic masses. So basically जो हमारी A statement है वो not correct है. It is incorrect statement because according to modern periodic table the properties of elements are periodic function of their atomic number. So basically जो हमारे modern periodic table है उसमें जो elements की जो properties है वो periodic function है of their atomic number. So first statement is incorrect because in first statement they have write the properties of elements are periodic function of their atomic masses, but it is the periodic function of their atomic number. So now we look into a B statement. So हमारी B statement क्या है, नॉन मेटलिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटलिक एलिमेंट्स. सो हमारे जो नॉन मेटलिक एलिमेंट्स होते हैं वो लेस होते हैं नंबर में, बिकॉज जो हमारे नॉन मेटलिक एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे नॉन मेटलिक होते हैं, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन. सो ये हमारे नॉन मेटलिक एलिमेंट्स होते हैं. बट जो हमारे मेटलिक एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं जो मेटलिक होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी मेटलिक होते हैं, एंड हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी मेटलिक होते हैं. सो बेसिकली अब हमारे जो नॉन मेटलिक एलिमेंट्स है वो क्या है, लेस है देन मेटलिक एलिमेंट्स हमारे ज्यादा है. सो हमारी जो बी स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ अब हम देखेंगे सी स्टेटमेंट. सो इन सी स्टेटमेंट for transition elements the 3d orbitals are filled with electrons after 2p orbital and before 4s orbital. So the d जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. So in case of transition elements, so जो हमारा order of filling of electrons in various subshell in various orbitals
is, so basically this is the order. 3p has less energy, then 4s, then 3d. So basically अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3d orbital is filled when 4s orbital get completely filled. So basically 3d orbital में electrons तब filled होंगे जब हमारे 4s orbital completely filled हो जाएगा. So this is according to the Hausdorff principle. So अब हमारी जो सी स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारी सी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, बिकॉज हमारे 3d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स तब फिल्ड होंगे जब हमारा 4s कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा. नाउ डी स्टेटमेंट. सो डी स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि हैलोजेंस हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. So this statement is not correct because noble gases जो होती है हमारी, उनकी क्या होती है, उनकी highest ionization enthalpy होती है in their respective periods. So noble gases have the highest ionization energy in their respective period. हेलोजेंस की नहीं होती है, हमारे जो नोबल गैसेस होती है उनकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड. बिकॉज एज वी नो द न्यूक्लियर चार्ज increase regularly with increase in एटॉमिक नंबर. सो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज रेगुलरली विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. सो एंड हमारी जो नंबर ऑफ शेल्स होंगी, नंबर ऑफ सब शेल्स क्या रहेंगी, रिमेन सेम. And different electrons enter in same subshell. So basically जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा एंड नंबर ऑफ शेल्स तो रिमेन रहेंगे एंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, हमारे इंक्रीज बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे. तो जिस वजह से हमारा जो साइज है एटम का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो जिस वजह से हमारा जो न्यूक्लियस का पुल है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन गेट इंक्रीज. सो ड्यू टू अट्रैक्शन force between nucleus and electron increases, so it's required highest energy to remove the outermost electrons. It requires highest energy to remove outermost electrons. So basically जो हमारी नोबल गैसेस होती है उनकी क्या होती है, हमारी हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है. बिकॉज हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा एंड हमारे नंबर ऑफ सबशेल्स क्या रिमेन सेम एंड इलेक्ट्रॉन्स एंटर जो होंगे वो इंक्रीज होते जाएंगे. तो जिस वजह से हमारे साइज है जो एटम का वो डिक्रीज हो जाएगा एंड जो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इट विल इंक्रीज. सो noble gases requires highest energy to remove the outermost electrons. Thank you students. I hope you all understood it well.